So once again, good morning all of you. This is your course instructor Khushwant Fatnani here with you all for a short clarity session where we'll be discussing some questions based from the chapter vectors and others in case need be. So let us begin. Here is your board. Good morning, sir. Good morning, good morning, Good morning, sir. good morning, Good morning, sir. good morning. Let us start off with the session. All right. So all right, now let's begin. So, the first question that has been sent is by one of you is the angle made angle made between A and negative x-axis. So, okay, have a look here. First question, you have been given a vector A. It has a value equal to 2i cap plus 2j cap, and we are being told what is the angle between A between A and negative x-axis, right? So between these two, we need to find the angle. Very simple. See how? Because we know that, let's say this is x-axis, okay? Now let's say this one is y-axis. So we have let's name them. This is y, while this is x. Negative x is the one which is pointing towards left. So we will have this as direction for negative x-axis, right? Okay. Now we have a vector 2i plus 2j cap. So let us mark the points 2 comma 2. Now we'll have a vector 2i plus 2j cap, which will start from the origin like this and extend till this point. We will call this point as r is equal to 2i cap plus 2j. All right. Now we are supposed to find out what is this angle, this one, right? So I think in order to do this, all you need to do is take what is the direction vector along x-axis minus I cap, right? So let us take this itself as another vector. Let's say B. Okay. So now we have a vector A, which is 2i cap plus 2j cap, right? And we have a vector B, which is minus I cap. We know the formula in order to find out angle between two vectors. What is it? We use the dot product formula. A dot B is equal to AB cos theta. So from here, cos theta is equal to A dot B whole by AB. Correct? Now, what are A and B? A dot B. So here, this A dot B is the dot product of A and B. Let's find out A dot B. Whenever you have a vector A given as AX I cap, right, plus AY j cap, and another vector B given as BX I cap plus BY j cap, then A dot B is given as AX BX plus AY BY. That is
the sum of product of the components, the sum of product of its respective components. So we have this expression and this expression, right? After this, you get this substituting the respective values. 2 into -1. Better, let's write it on the other side. Therefore, we have here A dot B is 2 times of -1 plus 2 times of 0, because there is no j or the value of y component for B. So this will be -2. All right. Now what about A and B? So these are individual values or magnitudes of the vectors A and B, right? So their values will be, we know that whenever we have a vector A given as ax I cap plus ay j cap, then its magnitude A is given as under root of ax square plus ay square, right? This is the formula in order to find out the magnitude of a vector. So magnitude of A will be 2 square plus 2 square under root, which is 2 times of 2 square or 2 root 2 in the root. So you have B, or the magnitude of B, is given as -1 whole square plus 0 whole square, which is 1. Therefore, the value of cos theta is equal to A dot B upon A into B. The value of A dot B we got as -2. Okay. And the value of A and B individually are 2 root 2 and 1. So we get -1 by root 2. Now, how do you find out which value of theta it gives us cos theta is equal to -1 by root 2, right? So you should know this one rule, that in every quadrant, one or the other sine, cos, tan is positive or negative. So first, in the first quadrant, all are positive. In the second quadrant, sine is positive, cos is negative, which means over here, if you draw a line and make this angle, right, then sine of this angle is going to be positive, right? Whereas cos of this angle is going to be negative. So we know one thing. We know that cos of 30 degree, or sorry, wait a minute. We know that cos of, and similarly all sine, here tan is positive, and in the fourth quadrant cos is positive. I will repeat, in the first quadrant sine is, all are positive. This is first quadrant. Second quadrant sine is positive. Third quadrant tan is positive. Fourth quadrant cos is positive. So let us first write cos theta is equal to, when does it come 45 degree? Very simple. We know, or when does it come 1 by root 2? Cos 45 is 1 by root 2. Okay. Now let us see, can we write cos of 180 minus theta? Its value should be, there is a formula which says that cos of 180 minus theta, according to this rule, right, where cos is negative in the second quadrant. I'll repeat, cos is negative in the second quadrant. According to that rule, this is minus cos theta, right? So therefore, by this definition, cos of 180 minus 45 should give you
cos of or minus cos of 45. Therefore, cos of 135 should give you minus cos 45, and therefore this should be minus 1 by root 2. Okay, so this tells me that this angle is 135. All right, now this also tells me that, let's say that if I want to measure the other way round, so by other way round I mean, just a second. So suppose I want to see this angle, this one, right? So this will be 360 minus 135, which should give me 225, right? But the general way of writing or reporting the angle is the acute of the two, or the smaller of the two, basically. This is how generally we see the angles. So in my opinion, your angle, if you have cos theta coming out to be minus 1 by root 2, and this is also equal to 135, so apparently your answer should be 135 degree in my opinion. So I think the one which is being marked as correct shouldn't have been done that. This is what my opinion says. Now let's see, in case you get the answer keys, in case you get any correction, then all right. If not, then we'll think about it. So this is my opinion, class. This is how you will go about this question. If the approach is clear to you, please raise hand. Yes, class. If the approach is clear to you, I'm not talking about the answer. If the approach is clear to you, please raise your hand. Yes, Pachalo. Okay. Note down कर लो इस question को अपने पास, so that we can move to the next one. जैसे ही नोट डाउन हो जाए, you can bring your hands down. तब तक hands up रखिए. जब तक नोट डाउन नहीं हुआ है तब तक हैंड्स अप रखिए. जैसे नोट डाउन हो जाए तो हैंड्स डाउन कर लो क्लास. ऑल राइट, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन वंस सोहम इज डन. सोहम हो गया क्या बच्चा? जैसे हो जाए तो हैंड डाउन कर लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एज कि हमारे पास एक कार की इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऐसा यू दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप, राइट. टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स. कहा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स पोजीशन वेक्टर when the car is moving with a uniform acceleration. एक्सेलरेशन दी हुई है कितनी? i कैप प्लस j कैप, राइट. और उसकी इनिशियल पोजीशन दी हुई है, लेट्स से r नॉट, which is i cap plus j cap. The units are meter per second. For acceleration it is meter per second square. For position it is meters. अब आपको क्या निकालना है? आपको बताना है उसकी क्या फाइनल पोजीशन होगी अगर उसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन और ये इनिशियल पोजीशन है. तो अब हाउ वुड वी मूव अहेड विद दिस क्वेश्चन, राइट? So can one of you, can Ria, you tell me that how do you write the three kinematic equations? Yes, Ria. Suppose ये नहीं दिया होता और मुझे इस क्वेश्चन में u, t, s और a दे दिया होता, राइट. तो सपोज क्या उस केस में, या u, t और a दे दिया होता, तो क्या उस केस में मैं s निकाल सकता था क्या? ये एक सवाल का जवाब दो. और दूसरा, सबको काइनेमैटिक इक्वेशंस बताओ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होती है. यस, गो अहेड बच्चा. Sir, if A and T is also given, then S is equal to UT plus half AT square. S is equal to ut plus half at square. Excellent बच्चा, excellent.
And what about the kinematic equation? This is the kinematic equation, ठीक है? निकाल सकते हो क्या और आंसर? Yes, sir, but here two distances are given. हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया होता, सपोज सिर्फ ये वाली वैल्यू दी होती, u t a s, तब निकाल सकते थे क्या? Yes, sir. अब ये दो डिस्टेंसेस देने का क्या मतलब है, ये समझाओ सबको। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है रिया? हाँ, आर दे टू डिफरेंट वैल्यूज और आर दे कंपोनेंट्स? सोच के बताओ। ओके, फिर से बोलना चाहोगे रिया? आई रिपीट, आर दे टू डिफरेंट वैल्यूज और आर दे कंपोनेंट्स? जैसे I think they are components. जैसे अगर मैं लिखता हूं कोई भी एक वैल्यू, अगर अपन लिखते हैं कोई भी एक वैल्यू a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक वेक्टर a बनाते हैं कहीं पर भी, तो उस वेक्टर a का y कंपोनेंट, राइट, और उस वेक्टर a का x कंपोनेंट की ये वैल्यू है, राइट? सो this value is the y component, right, which is oriented along y axis, while this value, the one which is horizontal, is oriented along x axis, इसीलिए it is the x component. So this would have been ax, this would have been ay, right? तो बस यहाँ पर भी वही करना है, आप एक कैलकुलेशन करो x कंपोनेंट के लिए और दूसरा कैलकुलेशन करो y कंपोनेंट के लिए, राइट? सो यहाँ पर लेट अस ड्रॉ अ पार्टीशन, ठीक है? देन एक एक करके वो कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखो और कैलकुलेशन कर लो। क्या लिखोगे? पहले यहाँ लिखो ux कितना है 2, यहाँ लिखो uy कितना है -1। दोनों जगह टाइम का कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं, तो टाइम तो सेम लग रहा है। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पर? ax कितना है 1, यहाँ ay कितना है 1, ठीक है? अब पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, उसके बाद पोजीशन से डील करेंगे। तो s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन को सपोज अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन को सपोज अपन y से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो दिस इज sx व्हाइल दिस इज sy, ठीक? तो वी हैव x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक वैसे ही जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बस वैसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब बस क्या करना है, इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, डाल लो, राइट? और इसको आगे सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा देखो। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहाँ सब कुछ बना दिया तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए rather than giving you everything spoon fed, I will want you to do some hard work on this, ठीक है? तो अभी हमारे पास जब ऐसा करोगे तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी? आपके पास वैल्यूज आ जाएगी x की और y की, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब इनिशियल पोजीशन क्या दी हुई है यहाँ पर? x के वो किस वैल्यू पर था इनिशियली? किस वैल्यू पर था? 1 पर। और y की किस वैल्यू पर था? 1 पर। तो आप यहाँ लिखो x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है? x की फाइनल पोजीशन कितनी है लिखो। सो यू विल हैव, लेट्स से यहाँ पर अभी एक निकाल के देख लेते हैं। तो आपके पास x आता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। लेट्स डू इट, मेरे साथ साथ करते जाओ, ठीक है? ओके, सो यू हैव uxt plus half axt square, right? And this y is uyt plus half ayt square. अब वैल्यू देखो कितनी होती है, सब्स्टिट्यूट करो, बताओ आंसर। यस,
यस रिया, गो अहेड, कैलकुलेट करो, बताओ। देखो ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या बच्चा, चेक करके बताओ। So you'll have 4 plus 2, that is 6 meters. X की वैल्यू यही आ रही है कि बच्चा लोग, चेक करो। और अब y चेक करते हैं, तो y is equal to UYT, चेक करो u और y क्या है। So we will have uy is -1, okay, -1 into 2 plus half of ay is given as again 1. We'll have 1 into 2 square, right? So we'll have -2 plus 1 by 2 into 2 square. So you have 2 minus 2, that is 0. तो अब क्या क्या आ गया बच्चा, आपके पास आया कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये आया, इसी को हमने sx कहा था, या और ये आया sy, मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज 0. तो कहने का क्या मतलब, अब इसको ग्राफिकली समझो कि हम लोग अगर ऐसे एक्सिस डायग्राम से एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में इसको देखना चाहें कि हो क्या रहा है रियलिटी में, तो हो ये रहा है कि यह है एक्स और यह है वाई एक्सिस. क्वेश्चन में क्या लिखता है, इनिशियल पोजीशन वाज आई कैप प्लस जे कैप. पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप होने का क्या मतलब है, तो आप इसको ब्रेक करो, ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसको ब्रेक करो दो पार्ट्स में, तो इससे क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1. कहने का मतलब शुरुआत में वो पार्टिकल कहां स्टैंड कर रहा था, वो पार्टिकल खड़ा हुआ था, या वो इंसान जिसके लिए हमारे पास पूरा मोशन प्रेडिक्ट किया गया है, वो 1,1 पर सिचुएटेड था, राइट. दैट पर्सन वाज सिचुएटेड एट द पॉइंट 1,1. नाउ हुआ ये कि x डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो गया 6 से. इट मींस आप क्या करोगे, जो फाइनल x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू इनिशियल x की वैल्यू प्लस द न्यू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, आया ना. तो अब दिस वाज 1 और वो कितना आगे बढ़ गया x डायरेक्शन में, 6 मीटर से आगे बढ़ गया, तो उसका जो नया x का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, 7 मीटर्स. उसी तरह से अब उसकी जो नई पोजीशन है ऑन द y कोऑर्डिनेट, वो कैसी हो जाएगी, पुरानी पोजीशन प्लस जितना से वो डिस्प्लेस हुआ है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y axis. So this will give us, वो पहले था 1 पर, लेकिन हमें यहां से समझ में आया कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, मतलब वो अभी भी उसी y की पोजीशन पर है 2 सेकंड के बाद भी. तो अब उसका नया न्यू पोजीशन क्या हो गई, द न्यू पोजीशन ऑफ द मैन इज 7,1, मतलब x में तो आगे बढ़ गया लेकिन y की डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ा, तो हॉरिजॉन्टली वो थोड़ा आगे बढ़ गया और 7,1 पॉइंट पर चला गया. सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, ऐसा, राइट, ऐसा कुछ. सो न्यू पोजीशन व्हिच इज f, राइट, एंड इनिशियल पोजीशन which is 1, right. So this is how we will go about it. Question क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है that फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा. तो अब सिंपल बात है कि अगर फाइनल पोजीशन 7,1 है तो आपसे ये वेक्टर पूछा जा रहा है. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो ओरिजिन को किसी पॉइंट से कनेक्ट करे, यानी कि आपसे ये वेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक. तो यू विल राइट दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर जो पूछा गया है. दिया क्या गया था, ये वाला इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया गया था, this one, the one which I am drawing in blue, right. So this is what was asked, whereas r is the position vector, sorry, which was given, this was given, blue one was given and the red one was asked, right.
द पोजीशन वेक्टर फॉर द फाइनल पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा, जो नई पोजीशन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज 7 आई कैप प्लस 1 जे कैप, या जिसको आप सिर्फ जे कैप भी लिख सकते हो। बच्चा लोग एक बार जो भी मैंने किया शुरुआत से उसको ध्यान से देखो, एब्जॉर्ब करो, है ना। 1 मिनट, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। जैसे ही मन भर जाए, यानी कि समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है, तो हैंड रेस करना। वन बाय वन हैव अ लुक एट ऑल द स्टेप्स, नो हड़बड़, आराम से इसको देखो। राइट, हमें क्या दिया हुआ था, हमें क्या पूछा गया था, राइट। हमसे क्या पूछा गया था, फाइनल पोजीशन वेक्टर पूछा गया था, राइट। तो हमने वो कैसे निकाला, एक बार ध्यान से देखो 1 मिनट में। तो हमने बस उसको स्प्लिट कर दिया सारे कंपोनेंट्स को, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। फिर बस कैलकुलेशन किया कि एक्स डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितने से हो रही है, और उसी तरह से कैलकुलेशन किया कि वाई डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितने से हो रही है। चाहो तो इसको यहाँ एक्स और वाई लिखने के बजाय एस एक्स लिखो, जिससे याद रहेगा कि दीज आर नॉट द फाइनल पोजिशन बट दीज आर डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है ना, कि ये डिस्टेंस नहीं है, राइट, ये पोजिशन भी नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किस डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो हमने वो निकाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, और क्या किया फिर, सिंपल टर्म्स हैं, इनिशियल पोजीशन दी हुई है तो इनिशियल पोजीशन में ऐड कर दो, कितना आगे बढ़ा वो आ जाएगा, और उस तरह से आपके पास फाइनल पोजीशन आ गई। फाइनल पोजीशन आ गई तो उससे जुड़ा हुआ वेक्टर लिख लोगे, राइट, एक्स यहाँ डाल के और वाई यहाँ डाल के। जैसे ही क्लियर हो जाए हैंड रेस करो बच्चा को। बच्चे लोग क्लियर है, अब हैंड रेस कर लो इफ यस, so that I'll know that it's clear. Okay, so let's see, Riya, Soham, स्वामी, टिके, रौनक, ऋषि, धीर, सबको क्लियर है, ठीक है, ग्रेट बच्चा लोग। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। So here's the question. Okay, now let's take one question which seems, next one which is seems important and interesting to me. So the question says that there is a vector OP, है ना। तो जब भी कभी OP और ऐसे पोजीशन वेक्टर्स दिए जाते हैं ना, तो बेस्ट तरीका होता है डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करने में हेल्प होगी, राइट। तो ये आपका y एक्सिस या आपकी x एक्सिस, ठीक है। नाउ दिस इज y, दिस इज x। क्या लिखता है, एक वेक्टर है OP which is 4i कैप प्लस 4j कैप, मतलब एक पॉइंट बना लो 4,4 और इसके लिए पोजीशन वेक्टर्स बना लो। क्लास यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, राइट, थैंक यू। सो now you have, let's say this point was P, right, so OP is the position vector जो question में दिया गया है, right, OP is the position vector, कैसा दिया गया है, 4i cap plus 4j cap। अब लिखता है कि it is rotated by 45 degree clockwise about O। तो मुझे एक बात बताओ, 45 degree clockwise कैसा होता है, this way, right, this is clockwise, right, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। सो सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक्स एक्सिस से कितने डायरेक्शन पे है ना। तो ऑन एन ऑब्वियस नोट ये कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन कौन सी है जिसको देखना अभी मैं बनाने जा रहा हूं, दिस लाइन। which line is it which is oriented along this OP vector? This equation of this line is y, x, क्योंकि देखो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, 4,4, है ना। तो थोड़ी दूर के बाद क्या लाई करेगा,
5,5, राइट। थोड़ा सा पीछे क्या लाई करेगा 3,3, उसके और पीछे क्या लाई करेगा 2,2, और उसके और पीछे क्या लाई करेगा 1,1। कहने का मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिस पर x और y दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होता है, राइट। और ऐसी लाइन जो एंगल बनाती है किससे, x एक्सिस और y एक्सिस से, वो एंगल होता है 45 डिग्री। कितना होता है क्लास 45 डिग्री। ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, अभी के लिए ऐसा समझो, ये क्या है एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। और अगर चाहो तो वो फॉर्मूला लगा के भी वेरीफाई कर सकते हो। कौन सा, जो अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लगाया कि एक वेक्टर ले लो a, है ना, वो वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा वेक्टर ले लो b, ऐसा कुछ, राइट, ये b, राइट, और ये a। तो b वेक्टर क्या हो गया, ये किस किस डायरेक्शन के अलोंग है, x डायरेक्शन के अलोंग, तो हम इसको b को लिखेंगे i कैप। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, क्या लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b होल बाय ab, right? It's clear from here that a is equal to 4 root 2, right? And b का magnitude is 1. Substitute करोगे ये आ जाएगा 4, right? Dot product दोनों का 4 आएगा upon a into b is 4 root 2, right? Which is 1 root 2. तो देखो यहाँ से क्या आ गया cos theta is equal to 1 by root 2 and therefore theta is equal to 45 डिग्री, जिसको मैंने यहाँ कह दिया था, right? तो देखो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें ज्योमेट्रिकल फैक्ट पता है कि जो लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, ये सिमेट्रिक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमेट्रिक होने का मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे बांटती है जैसे साइड जो एंगल वो y एक्सिस के साथ बनाए और जो एंगल वो x एक्सिस के साथ बनाए, दोनों कैसे हो जाते हैं इक्वल। 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री, राइट। तो हमें ये फैक्ट अगर पता है तो हम आगे और आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास ये जैसे ही हमने समझ लिया, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या था ओपी वेक्टर था, तो ये रहा हमारा ओपी वेक्टर, ठीक है। दिस पॉइंट वाज P, राइट, दिस वाज O, दिस वाज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस। लिखता है इसको 45 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, राइट। मतलब ये वेक्टर अब यहां आ गया, देखो ऐसा कुछ, ऐसा आ गया यहाँ पे, हाँ या ना, ऐसे रोटेट करके Yes. यहाँ ले आए इस जगह, राइट। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है कि नहीं, राइट। आई कैप है वेक्टर का डायरेक्शन, अब जो नई पोजीशन है उसमें। और इसका मैग्नीट्यूड हम जान चुके हैं क्या, मैग्नीट्यूड जान चुके हैं क्या, यहाँ देखो अगर ये वेक्टर ए था या इसको मैंने ओपी लिखा तो ओपी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप, राइट। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओपी इज इक्वल टू दिस वेक्टर ओपी इज इक्वल टू 4 रूट 2, करेक्ट, 4 रूट 2। तो इस वजह से अब मैं किसी भी वेक्टर को कैसे लिखता हूं, याद करो, अ वेक्टर ए इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, राइट। एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड कितना हो गया वेक्टर का 4 रूट 2 और उसका डायरेक्शन कैसा हो गया आई कैप। इसलिए नई पोजीशन में, इन दिस न्यू पोजीशन, वेक्टर को कैसा लिखोगे, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया आई कैप है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट 2 आई कैप। क्लियर है क्या बच्चा लोग, ये हैंड रेज करो इफ यस, हैंड रेज करो इफ यस। If the concept is clear to you for this question and the approach is clear, please hand raise करो बच्चा लोग, yes। हाँ धीर, आपको कुछ पूछना है बच्चा, पूछ लो, yes बच्चा। No, sir. कुछ नहीं. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। सो क्लास इसके बाद आई गिव यू वन मोर टाइम जहां पे वील कंटिन्यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। एक्चुअली आई हैव अ क्लास स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड Thank you, sir. let us meet very quickly, very soon. Thank you, sir.
near other questions, right? Okay, but chalo. Thank you everyone. Thanks a lot. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you very much.